پاسٹر کیسر سہیل صاحب، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو ہمارے چرچ مارننگ اسٹار میں بھیجا تاکہ آج کی عبادت کے وسیلہ سے جو زندگیاں دیکھیں وہ برکت پائیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بھائی سیلویسٹر اور دوسرے بھائی تشریف لے آئیں اسٹیج پر۔ پیٹرک بھائی اور سیلویسٹر بھائی پلیز آپ اسٹیج پر آئیے، آپ کی زوردار تالیوں سے۔ منگل بھائی آپ بھی آئیں، ہار بنائیں گے پیٹرک بھائی کو، بھائی یونس آپ کی بھرپور تالیوں سے۔ انکل صاحب آپ آئیے۔ انکل صاحب سیلویسٹر بھائی کو جو کہ کیمرہ مین ہے ان کو ہار پہنائیے آپ کی بھرپور تالیوں سے۔ ہمارے موجودہ پاسٹر صاحب کو یہ بھی بھائی کیمرہ مین کو پہنائیں گے۔ خداوند نام کو اسی طرح استعمال کرتا رہے اور سارا جلال مسیح یسوع کے نام کو ملتا رہے۔ مجھے وقت میں ہم نے اپنے منہ کو دیکھنے والے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہم تمام کو بھی پاسٹر اکرم کا سلام پہنچے۔ آئیے آج کی صبح ہمارے لیے بڑی بابرکت صبح ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کلام کو آگے لے کر چلوں، میں پاسٹر کیسر سہیل گاسپل چرچ منسٹری کے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین اور اس کے ساتھ ہی شبیر ٹی وی کے چیئرمین، جن کی کاوشوں سے آج کراچی کے کئی ایک علاقوں میں لوگ ٹیلی ویژن پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر خدا کے کلام کو، خدا کی ستائش کو جگہ بجگہ ہم جا رہے ہیں اور اس کیمرے میں کیپچر کر رہے ہیں تاکہ لوگوں تک رسائی حاصل ہو کہ لوگ کس طرح برکت پائیں، کس طرح اپنی زندگیوں کو کلام کے سانچے میں ڈھالیں، تاکہ خدا نے جو ہمارے لیے برکات مختص کی ہیں، اپنے لوگوں کے لیے مقرر کی ہیں، ان تمام کو اس کلام خدا کی قدرت سے ہم سب کی زندگیوں پر جاری کریں۔ کہیے ہاللویا۔ آج جس مضمون کو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کو ہوں، یہ بڑا ہی، ویسے تو کلام کی ہر ایک آیت ہمارے لیے بڑی معنی خیز ہے، لیکن جب بات موقع کی جاتی ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ موقع باتیں جو پہلی ٹوکری میں کیا ہیں، سونے کے سیب کے برابر میں ہیں۔ آمین۔ آئیے جن کے ساتھ میرا آج کا جو مضمون کا ٹاپک ہے اور جو ٹاپک ہوگا وہ یہ ہے کہ رشتہ ہمارا خدا سے کیسا ہے، یا ہم خدا سے کیسے رشتے کے منتظر ہیں۔ وہ خدا تو ہمیں، جس نے ماں کے بطن میں ہمیں خلق کیا، اور جس طرح داؤد کہتا ہے کہ جب میں بے ترتیب مادے سے بن رہا تھا تو نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا ہے۔ سو آئیے آج کے دور حاضر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا رشتہ کیسا خدا کے ساتھ ہے، اور پہلے ہم دنیاوی رشتے دیکھیں گے، اس کے بعد ہم کلیسیا سے خدا کا رشتہ دیکھیں گے۔ جن کے پاس کلام خدا ہے وہ میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب، اس کا 29واں باب ہے اور اس کی 12، 13، 14 اور 15 آیت میں کلام خدا میں سے کہوں گا کہ جو بھی پڑھے اسے ایک مائک دے دیا جائے تاکہ ہم سننے والے سب تک پا سکیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 29واں باب اس کی 12 سے 15 آیت مقدسہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ جو نکال لے جلدی سے با آواز بلند پڑھ دیجیے گا۔ پریز اللہ۔
कि मैं तेरे बाप का रिश्तेदार और इसका का बेटा हूँ। तब उसने दौड़कर अपने बाप को खबर दी। लाबन अपने भांजे की खबर पाते ही उससे मिलने को दौड़ा और उसको गले लगाया और चूमा और उसे अपने घर लाया। तब उसने लाबन को अपना सारा हाल बताया। लाबन ने उससे कहा कि तू वाकई मेरी हड्डी और मेरा गोश्त है। तो वो 1 महीना उसके साथ रहा। तब लाबन ने याकूब से कहा, चूंकि तू मेरा रिश्तेदार है, तो क्या इसलिए लाज़िम है कि तू मेरी खिदमत मुफ्त करे? तो मुझे बता कि तेरी उजरत क्या होगी? आमीन। कलाम खुदा सुना सीखा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस का सबब हो। हमने कलाम खुदा में से पैदाइश की किताब में से चंद आयतें मुकद्दसा की तिलावत की है, और जिसमें मैंने पहले बताया कि आज का जो हमारा मजमून है, हम सीखेंगे रिश्तेदारी। हम पहले दुनियावी रिश्तों के ताल्लुक से गौर करेंगे। हम पहले दुनियावी रिश्तों की तरफ देखेंगे कि आया यहाँ पर जो हमें कलाम खुदा में से पढ़कर हमने अपने कानों से सुना और इस बात को देखा, याकूब जब अपने भाई एसाव को धोखा देकर जाता है तो रास्ते में उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्हीं मुश्किलात के साथ साथ वो खुदा को अपने दरमियान एक पत्थर को लुढ़काता है और उस पत्थर के ऊपर तेल को डालता है और एक सतून सा खड़ा करके खुदा के साथ एक मुआहदा करता है। अब एक रिश्ते के साथ याकूब दगा करके आया है और एसाव के साथ क्या दगा किया? धोखे से क्या किया? भाई की बरकत ले ली। अब जैसे ही धोखा करके गया, अब खुदा को अपना इज्जी बना रहा है। वैसे तो खुदा सबका इज्जी है, लेकिन हम इस ताल्लुक से बाद में सीखेंगे। अब जब ये सफर मुश्किलात को तय करता हुआ अपने मुकर्रर मुकाम पर पहुंच जाता है, तो वहां पर जाकर इसे जब हम बाद में आए में देखते हैं, तो मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। लिखा है, याकूब ने राखल से कहा, मैं तेरे बाप का रिश्तेदार और याकूब का बेटा हूँ। अब ये दुनियावी रिश्ते की तरफ हम चलने लगे हैं। तो बड़े गौर से होश से अपने दिल दिमाग को इस वक्त जो कुछ लम्हात में मुयस्सर हुए हम कलाम को सीख रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। यहाँ पर जो दुनिया के रिश्ते में हमें नजर आ रहा है, वो बड़ी एक अजीब किस्म की तरफ है। आमीन आमीन। दुनिया के रिश्ते में इस कदर तरफ नजर आ रही है और रिश्ता कुर्बानी भी मांगेगा। 15वीं आयत में जब हम देखते हैं तो याकूब पहले राखल से मिलता है। अब इतना वक्त नहीं कि मैं डिटेल में जाऊं, घर पे जाकर पढ़ लीजिएगा, तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। पहला रिश्ता जो माँ का बाप से है, और मेरा बेटा जो है वो मेरी बहन को लाजिम बात है वो कहे। यानी कि पंजाबी में जब हम उसे कहते हैं तो वो मामू और फुफो ज्यादा आपस में हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी जब वो राखल को देखता है तो बेसाख्ता उससे मिलता है, गले लगाता है, रिश्ते को देखकर रिश्ते की तरफ जा उठती है और उससे कहता है, मैं याकूब हूँ जो रिबका का बेटा हूँ। किसका बेटा हूँ? रिबका का बेटा हूँ। अब जब 15वीं आयत में देखते हैं, राखल जाकर अपने बाप यानी लाबन को खबर देती है और उससे कहती है कि तेरा भांजा है। आमीन। अब मामू भांजा जब मिलते हैं तो लिखा है 15वीं आयत में पढ़ने लगा हूँ, तब लाबन ने याकूब से कहा, चूंकि तू मेरा रिश्तेदार है तो क्या इसलिए लाजिम है कि तू मेरी खिदमत मुफ्त करे? आमीन। यहाँ पर साबित हो रहा है कि एक रिश्ता जब दूसरे रिश्ते को लेकर चल रहा है तो उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, और वो कुर्बानी क्या है तो मेरी रहनुमाई कर सकता है। अब राखल बड़ी खूबसूरत है, लेकिन याकूब की बेटियां कितनी हैं? मेरे साथ है। लिसिया कितनी बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं। बड़ी का नाम लिया है और छोटी का नाम राखल है। और कलाम खुदा बयान करता है
कि लिया थोड़ी सी चुंदी है, यानी आंखें छोटी हैं, जिसे हम पंजाबी में कुछ और ही कहते हैं, लेकिन राखल कलाम खुदा बयान करता है कि बड़ी हसीन और खूबसूरत है। अब याकूब इसके ऊपर फरीदा हो गया, दिल दुर्विदा कर दिया और कहने लगा कि ऐ मानो, अगर तू मुझसे कहता है कि मैं तेरे रिश्तेदार, तेरी बहन का बेटा हूँ, तो एक काम करते हैं, मैं पैसे नहीं लूंगा। अब ये एक रिश्ता दूसरे रिश्ते के लिए कुर्बानी देने लगा है। आमीन, हालेलुया। एक रिश्ता दूसरे रिश्ते के लिए कुर्बानी देने लगा है। और वो क्या कुर्बानी मुकर्रर हो गई? उसने कहा मैं इस रिश्ते को हासिल करने के लिए कितने वर्ष, 7 वर्ष तेरी क्या करूंगा, खिदमत करूंगा। अब एक दुनिया का रिश्ता हमने देख लिया। इससे पहले कि हम और आगे चले, मजीद मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे अपने सरमन को कंप्लीट करना है, सो मोटे मोटे हिंट देते चलेंगे। अब एक रिश्ता माँ का, एक रिश्ता लावन का यानी भाई बहन का, अब 2 रिश्ते पहले मौजूद है, तीसरा रिश्ता जन्म लेने को है। आमीन, तीसरा रिश्ता जन्म लेने को है। वो कौन सा रिश्ता था? कौन सा रिश्ता था? याकूब का राखल से। क्या वो रिश्ता कंप्लीट हुआ? पहले 7 वर्ष में तो नहीं हुआ, बल्कि जब 7 वर्ष हो गए तो कलाम खुदा पढ़े तो लिखा है उसे 7 वर्ष ऐसे लगे कि जैसे वक्त ही नहीं गुजरा, मुद्दत का पता ही नहीं चला। क्योंकि जहां पर मोहब्बत की बात आती है, जहां पर रिश्ते की बात आती है, जहां पर तड़प की बात आती है, वहां पर टाइम स्पेंड करने का पता ही नहीं चलता। आमीन। आइए इसी के साथ हम एक और देखते हैं, एक वो बंदा खुदा जिसे खुदा ने आजमाइशों के अंदर इस कदर अप्रूवल खुदा से हो गया था। इससे पहले जो वक्त गुजारा किए, आइए मेरे साथ निकालिए अय्यूब की किताब, उसका 19वां बाब, जल्दी से मेरे साथ निकालिएगा। जिनके पास कलाम खुदा है वो आज थोड़ा सा जरा शार्प रहें, क्योंकि आज हमारे पास कुछ हवाले ज़्यादा हैं, ताकि सुनने वाले समझने वाले इस कलाम के वसीला से बरकत पा सकें। जी, अय्यूब की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत हम कलाम खुदा में से पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर कर दिया है। उसने मेरे भाइयों को मुझसे क्या कर दिया है? अब भाई का भाई के साथ क्या रिश्ता होता है? खूनी। आमीन। आवाज नहीं आ रही लेसिया? आमीन। भाई का भाई के साथ कैसा रिश्ता है? बड़ा क्लोज रिश्ता है। अब तो पिछला स्टेप हम पढ़ के आए हैं, वो भी दोनों आपस में क्या थे? भाई थे। दोनों का बाप इज़हार है, बड़ा सौ है, छोटा याकूब है। अब यहाँ पर अय्यूब क्या बयान करता है? पढ़िए बहन। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर कर उसने दिया मेरे भाइयों को मुझसे दूर कर दिया है। जी। और मेरी जान पहचान मुझसे बेगाना हो और मेरी जान पहचान वाले मुझसे क्या हो गए? बेगाना हो गए। यानी कल तक जो रिश्ते हमारे बड़े मजबूत थे, जो हमारे खूनी रिश्ते थे, जिन रिश्तों की लोग मिसालें देते थे, कलाम खुदा अय्यूब की बात को बयान करता है कि मेरे रिश्ते मुझसे क्या हो गए? दूर हो गए। और जिनको बड़ी मैं करीब से जानता हूँ, वो सारे के सारे मुझसे क्या हो गए? बेगाना हो गए। जी आगे बढ़िए। मेरे रिश्तेदार काम ना आए। मेरे रिश्तेदार, काम ना आए। जरा मेरे पीछे कहिए, मेरे रिश्तेदार, काम ना आए। मेरे पीछे कहिए, मेरे रिश्तेदार काम ना आए। ये किन रिश्तेदारों की बात हो रही है? आज हम अपने इतराफ, अपने इर्द गिर्द नजर डालें, भाई भाई के लिए जान देने को तैयार है, बहन बहन जान देने के लिए तैयार है, लेकिन पिछले इतवार खुदा के खादिम पैगंबर ने इस बात को बड़ा क्लैरिटी के साथ बयान किया कि जो मुझसे ज्यादा पहले लफ्ज़ क्या? माँ, बाप, बहन, भाई, बीवी, बच्चे, यहाँ तक अपनी जान से दुश्मनी ना करे, वो मेरा शागिर्द है। अब यहाँ पर क्या होगा? अय्यूब इस बात को कलाम खुदा में लिखता है। हम जानते हैं कि अय्यूब के बड़े खूनी रिश्ते थे जो जुदा हो गए। 7 बेटे, 3 बेटियां एक साथ। जब डेथ की खबर आई तो इंसान के अंदर कैसा जिगर, लेकिन जो उसके भाई थे, जो उसके रिश्तेदार थे, जो उसके हमदर्द थे, जो उसके दोस्त अहबाब थे, 7 दिन तक उसका मुंह देखते रहे।
हम जाते हैं किसी के मैयत होते हैं, हम उसे फौरी रिश्तेदारी जताते हैं तसल्ली देने के लिए, अच्छा जी खुदा की मर्जी है, आपके सबका अंजाम यही है। तो क्या हमारे इतने अल्फाज बोलने से क्या हमारे रिश्तेदारों को तसल्ली मिलती है? हरगिज़ नहीं। ये एक दुनियावी कल्चर है, और मैं पहले कहा दुनियावी रिश्तों के ताल्लुक से सीख रहे हैं। आमीन। हमारे इतने से अल्फाज बोलने से पंजाबी की कहने हैं अच्छा भाई खुदा दी मर्जी, या दूसरे सादा बात जो अज भी देहाती लोग ने की कहते हैं की आखिए ये अपना कलाम खुदा बयान करता है, तेरी उम्र की मियाद खुदा ने क्या किया है, मुकर्रर की है। लेकिन अगर खुदा के साथ रिश्ता है, अगर खुदा के साथ वाकई मसीहत कोई मजहब नहीं है, गौर से सुनिएगा, तो रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, मसीहत एक रिश्ता है। हालेलुया हालेलुया। आगे चलकर हम देखेंगे कि मसीहत कैसा रिश्ता है। यहाँ पर अय्यूब अपने दुख को बयान कर रहा है और कलाम खुदा तस्दीक कर रहा है कि मेरे रिश्तेदार मेरे काम ना। आज भी ऐसा हो, जब कुछ ज्यादा बड़ी से बड़ी मुश्किल हम पर आती है तो जो हमारे सबसे करीब होते हैं सबसे पहले वही गोल होता है। फोन करो भाई जी कितने, हाँ जी आ रहे हैं सर, होंगे या नहीं, लेकिन पता है कि अब मामला बड़ा ही कठिन किस्म का है। सो दो पॉइंट हमने देखे, यहाँ पर खुदा का बंदा दुख की हालत में फरियाद करता है, और वो फरियाद किसके साथ कर रहा है? सवाल तो नहीं। हम अपने भाइयों को दुख बताते हैं, हम अपनी बहनों को दुख बताते हैं, हम अपने बाप को दुख बताते हैं, हम अपनी माँ को दुख बताते हैं, लेकिन अय्यूब यहाँ पर अपना दुख, अपना कर्ब, अपनी हालत किसको बयान कर रहा है? यानी अय्यूब का किसी ऐसी हस्ती के साथ रिश्ता कायम है जो जानता है कि जिसने मुझे ब्लेस किया, जिसने मुझे बरकत दी, और पहले बाप की पहली आयत में पढ़े तो लिखा है उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम क्या था? एक शख्स था, लेकिन वो कामिल रास्तबाज, बदी से दूर रहता, खुदा से डरता था। और लिखा है कि जब उसके बेटे बेटियां हर एक अपने दिल पर ज़ियाफत करता तो वो ज़ियाफत करके आते। ये उसकी खसूसियात, पहले बाप में कोई इंसान नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई मुबश्शिर नहीं, कोई खातम नहीं, बल्कि खुद खुदा बयान कर रहा है। अय्यूब के ऊपर इस रिश्ते को खत्म करने के लिए उसका खुदा के साथ बड़ा करीबी रिश्ता था। अब लीग सुपर से दूसरा बाब में जब हम पढ़ते हैं पहले बाब में तो लिखा कि खुदा के तख्त के सामने शैतान की सफाई, पहले चक्कर में गया, फिर उसके बाद अप्रूवल हुआ, और यहाँ पर ये उन्हीं दुखों को कहता है कि मेरी जान पहचान मुझसे बेगाना हो गए, मेरे रिश्तेदार काम ना आए। अब ये बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आयत है जो अब मैं पढ़ने लगा हूँ। लिखा है और मेरे दिली दोस्त मुझे हालेलुया, मेरे दिली दोस्त अय्यूब भाई कलाम खुदा क्या बयान करता है? जिनके ऊपर हम दिल गुर्विदा होते हैं, हम फारम दिल फेंकते हैं, जिन्हें हम अपनी सपोर्ट बनाते हैं, खुदा का बंदा, इस जैसा कोई अमीर शख्स नहीं है, इस जैसा कोई कामिल शख्स नहीं है, वो यहाँ पर खुदा से फरियाद कर रहे हैं, अपने इलाही रिश्ते से फरियाद कर रहे हैं कि खुदा मेरे दिली रिश्ते मुझसे क्या हो गए, दूर हो गए। हम किन रिश्तों को लेकर बैठे हुए हैं? दुनिया के। पहले मैंने आगाज भाई से किया, आगाज नहीं कायन और आबिद को देखे, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, वो भी एक रिश्ता था। फिर याकूब और इसहाक को देखिए, इसहाक को देखिए, इसहाक इनका बाप है, दोनों एक ही बाप से हैं, एक ही नस्ल है, एक ही कबीला है, लेकिन हुआ क्या? धोखाधड़ी हो गई। दोनों रिश्तों में रिश्ते जो दरार डाली, और वही दरारें आज तक चलती आ रही हैं। हम विसाते कर रहे हैं, हम इतनी दुआ कर रहे हैं, हम इतना ये सब कुछ कर रहे हैं, हम शुक्रगुजारियां भी कर रहे हैं, हम हदिये भी दे रहे हैं, लेकिन हमें बरकत नहीं मिलती। आप दुनिया के रिश्तों से तवक्को करते हैं, आप दुनिया के रिश्तों को बाजू जानते हैं, लेकिन कलाम खुदा बयान करता है मलाऊन है वो आदमी जो बशर को अपना बाजू जानता है। हालेलुया। बशर को नहीं, हमें जिंदा खुदा को अपना बाजू जानना है, जैसे अय्यूब ने जाना। अब यहाँ पर वो अपनी हस्ती से, इलाही हस्ती से दुख बयान कर रहा है। उसके साथ
एक और बंदा है दाऊद बादशाह, वो अपना दुख बयान करता है। आइए मैं चाहता हूँ इसको भी पढ़ लें, हमें बरकत मिलेगी। जिनके पास कलम है खुदा है निकालिए मेरे साथ 38वां ज़बूर, जल्दी से 38वां ज़बूर निकालिए और देखिए ये खुदा का बंदा हमें बेहतरी और नसीहत के लिए आज क्या सिखाने को है। जी 38वां ज़बूर है और उसकी 10वीं और 11वीं आयत पढ़ना शुरू कीजिए। मेरा दिल धड़कता है, आज लिखा मेरा दिल धड़कता है, मेरी ताकत घटती जाती है, और मेरी ताकत घटी जाती है, मेरी आंखों की रोशनी भी मुझसे जाती रही। और मेरी आंखों की रोशनी भी मुझसे। क्यों? ये दाऊद किसके सामने फरियाद कर रहा है? किसी बादशाह के सामने, वो तो खुद बादशाह है। किसी इंसान के सामने। अगर 38वें ज़बूर का पहला टाइटल पढ़े तो ऊपर जरा देखिए क्या लिखा है, दुखी आदमी की फरियाद। किसके साथ? मैं दुख में हूं तो क्या मैं मुबशर बिचर से कहूंगा, या मैं बुजुर्ग खादम से कहूंगा, या मैं कलीसिया से कहूंगा? हरगिज़ नहीं। जिस खुदा ने इन्हें ब्लेसिंग दी, जिस खुदा ने इन्हें ब्लेसिंग दी, जिस खुदा ने आप सबको ब्लेसिंग दी, हमें उसके साथ रिश्ते को मजबूत करना है। हालेलुया। हमारा रिश्ता कैसा है? दाऊद क्या कहता है? मेरा दिल धड़कता है लेकिन मेरी ताकत घटी जाती है, यहाँ तक कि मेरी आंखों की रोशनी। पढ़िए सिस्टर जी 10वीं आयत पढ़ना शुरू कीजिए। मेरा दिल धड़कता है और मेरी ताकत घटी जाती है, जी मेरी आंखों की रोशनी भी मुझसे जाती रही। मेरी आंखों की रोशनी तक मुझसे जाती रही लेकिन परवाह नहीं। पढ़िए आप। मेरा अजीज और दोस्त, मेरे अजीज और दोस्त मेरी कलाम में अनाथ हो गए। क्या लिखा है? मेरे अजीज और मेरे दोस्त जिन पर मैं तवक्कल करता हूँ, जिन्हें मैं अपना शौर जानता हूँ, अब जब मुझ पर मुसीबत आई, जब मुझ पर दुख आया, जब मुझ पर तकलीफ आई, तो क्या हुआ? अलग होगा। और मेरे रिश्तेदार दूर जाकर खड़े हुए। और मेरे रिश्तेदार कहाँ खड़े हो गए? दूर। किन रिश्ते की बात करते हैं? किन रिश्तों पे भरोसा करते हैं? कोई तो होगा जिस रिश्ते के ऊपर आंख बंद करके मान जाए। दुनिया के रिश्ते हम पढ़ रहे हैं। मेरी बात आपको हो सकता है समझ ना आए, आपकी बात हो सकता है मुझे समझ ना आए, लेकिन आज सुबह हम कलाम खुदा में से पढ़ रहे हैं। कहिए आमीन। हम आज सुबह कलाम खुदा में से पढ़ रहे हैं। और क्या पढ़ रहे हैं? मेरे रिश्तेदार कहाँ खड़े हो गए? दूर मेरे साथ रहिए। कहाँ खड़े हो गए? कलीसिया दूर जा खड़े हुए। किस लिए? दुख दुख में, और दुख में एक ही हस्ती है, दुख में एक ही सहारा है, परेशानी में एक ही सहारा है जिसके सामने आदमी दिल मिलता है। तो इसका नाम बताए, जरा जोर से कहिए, जरा जोर से कहिए। भाइयों कौन है? जोर से कहिए यीशु। आप चाहते हैं यीशु से रिश्ता बाहर करना? हम दुनिया के रिश्तों को पढ़ रहे हैं। दुनिया के रिश्तों में हमें वफा नहीं है और ना ही मिले। पैदाइश से हम लोग शुरू में और अभी हम लोग एक ताराना जायजा लेते हुए ज़बूर तक आए। अब जिसे हम यीशु कहते हैं, हम जरा उसकी जिंदगी के ऊपर भी गौर करें। सब जानते हैं यीशु मसीह निजात नहीं पाया। आइए जरा तक मेरे साथ निकालिए, मत किस कीजिए उसका छठा पाठ जल्दी से। ये तो नबियों की बात थी। अब यीशु मसीह को देखते हैं कि जब वो वक्त मुकर्रर पर खुदा के रूह कुदस की मार्फत लिखा है कि मरियम पर रूह कुदस ने रहम किया और वो हमला हुआ, उसके बेटा हुआ, और ये सारी चीजें हम कलाम खुदा में से पढ़ते हैं। लेकिन मैं सिर्फ नहीं जाना चाहूंगा। आइए मेरे साथ निकालिए जरा मरकज की अंजील और उसका छठा बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत पढ़ना शुरू कीजिएगा। छठा बाब तीसरी और चौथी आयत जरा थोड़ा सा जल्दी निकालिए। क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का बेटा अय्यूब? यीशु मसीह जब अपने कलाम खुदा की कुदरत से वो कलमा जब मुजस्सम हुआ, जब हमारी माँ के बतन में आया, सब खुदा के प्लान के अंदर था।
और लिखा है कि जब वो बड़े हुए तो हैकल के अंदर, इबादत खानों के अंदर तालीम देते रहे। लेकिन जो उस वक्त के नाम लोग थे, जो उस वक्त के बिशप साहबान थे, वो सच्ची तालीम को बर्दाश्त नहीं करते। यीशु मसीह तालीम देना शुरू हो गए। अब वहां पर ये इलाका जहाँ पर यीशु मसीह खिदमत और कलाम की खिदमत को सरंजाम दे रहे हैं, नासरत का हम क्या कहते हैं? यीशु मसीह नासरी। नासरी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नासरत का रहने वाला था, गलील के इलाका में पैदा हुआ और नासरत के अंदर जब अपने शहर के अंदर वो तालीम दे रहे हैं, वो खुदा के कलाम की सच्चाइयों को बयान कर रहे हैं, अजीम सच्चाइयों को बयान कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर तजस्सुस ज्यादा। अब उसका बैकग्राउंड दिखाने लगा। क्या क्या ये वही पढ़ाई नहीं? पढ़िए। जो मरियम का बेटा और जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसुफ और यहूदा और शमौन का भाई है। यीशु मसीह कर क्या रहे हैं? कलाम सुना रहे हैं। बजाय इसके कि लोग उस कलाम के सबब से उस अबदी रिश्ते को कायम करें, उस रिश्ते को कायम करने की बजाय उल्टा मुकाबला शुरू कर दी। अब यीशु मसीह के रिश्तों को जाहिर करना शुरू कर दी। ये कौन है तो ये बड़ाई उसका बेटा है। यहाँ से इसका नसबनामा चला, लिखा है ये मरियम का बेटा है, यहूदा शमौन यूसुफ का नाम आया है, और लिखा क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं। यीशु मसीह की बहनों को भी शामिल कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है वो तो कुदरती कुदरत से पैदा हुए थे, लेकिन उसके बाद जब मरियम और यूसुफ की मंगनी हुई, फिर शादी हुई, तो शादी के बाद समझते हैं कि फिर औलाद जैसे बरकत खुदा देता है। लेकिन यीशु मसीह के मुताबिक लिखा है तो रुल कुदरत की कुदरत से क्या है? हामला पाएंगे। तो जो खुद बात है उसके अंदर रिश्ते जो हैं, हमारे रिश्ते खुदा के साथ है। क्या खुदा हमारे नापाक रिश्तों को कबूल करेगा? एक चीज याद रखिए मेरे अजीजों, खुदा गुनाहगार से प्यार करता है, गुनाह से प्यार करता है। आमीन। आगे चल के देखते हैं। जी लिखा है बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। अब जब ये सारे वाकयात हो गए तो यीशु मसीह ने तो बात कही। पढ़िए जरा मेरी। यीशु ने उससे कहा नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जती नहीं होता। कहिए हालेलुया। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, क्या कहा? तुम्हें जो समझना है समझो, तुम जिन रिश्तों को लेकर चल रहे हो चलो, लेकिन मेरा रिश्ता ये नहीं है। और आगे मत्ती के इंजील के अंदर भी है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो घर पर जाकर पढ़ लीजिएगा। मत्ती के इंजील 13वें बाब के 53 में आए हैं, यही अल्फाज यीशु मसीह अपने शहर में गांव गांव देहात गलियों में जाकर तालीम देता रहा। अब ये हम देख रहे हैं, अब हमने दुनिया के रिश्ते देखे। अब आपको अबदी और हकीकी जिंदगी का फार्मूला बताओ। कौन कौन है जो अबदी और हकीकी जिंदगी के फार्मूले को जानना चाहता है? जरा अपने हाथों में दिखाएं। जो वाकई आज चाहते हैं कि मैं खुदा से अबदी और हकीकी रिश्ते के अंदर मुंसलिक हो जाऊं, अपने हाथ दिखाइए। मैंने नीचे करने का नहीं कहा, रिकॉर्डिंग चल रही है, कल आप यूट्यूब और फेसबुक पर भी अपने आप को चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, वाकई चाहते हैं? पक्की बात है, एक सोच लीजिए। आइए कलाम खुदा में से देखते हैं जिनके पास अब हम कलीसिया से रिश्ते के ताल्लुक को कायम करने वाले उस मसीह है, उस लोग की तरफ देखते हैं और जरा ये देखते हैं कि ये आए कहाँ से, ये सिलसिला चला कहाँ से। 4 पॉइंट हमने देखे हैं। अब हम जो पॉइंट देखने को है वो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए निकालिए जरा रूत की किताब, रूत की किताब 3रा बाब और उसकी पहली 3 आयतें मुबशर की तिलावत करते हैं। जी जो खुदा से वाकई रिश्ता रखते हैं, उसके भेजने वाले को कबूल करते हैं, मगर यहाँ पर हमने देखा कि यीशु मसीह को कबूल नहीं किया गया। और अगर हम इससे पहले यूब की किताब में देखें तो वहाँ पर भी हमें रिश्तों के ताल्लुक से बड़ा कुछ बताया गया, मगर जब खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा अपने जोरबाजी से हमें बचाता है। आइए हम जरा हकीकी फार्मूले को देखते हैं। रूत की किताब उसका 3रा बाब और उसकी पहली 3 आयतें। अब यहाँ से कलीसिया का रिश्ता खुदा के साथ मुंसलिक होना शुरू होने लगा है। बहुत से सुनिएगा जी, 3रे बाब की पहली 3 आयतें। फिर उसकी सास नोमी ने उससे कहा, फिर उसकी सास नोमी ने उससे कहा,
बेटी, क्या मैं तेरे आराम की तालिब ना रहूं, ना बनूं जिससे तेरी भलाई हो। अब ये नौमी है और ये मुआद से निकली, इसका शौहर अली मलक और इसके 2 बेटे और इसकी 2 बहुएं। लेकिन जब गई तो खानदान भरा हुआ था, और जब वापिस आई तो सिर्फ और सिर्फ एक बहू और ये खुद सास वापिस आई। अब उसी बहू से मेरा और आपका निजात हिंदाने को कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, बुलंद से कहिए हालेलुया। अब आपके दुखों का मदावा करने वाला, आपके दुखों से तसल्ली देने वाला, आपको रिहाई देने वाला, और जिसने ये वादा किया है कि जान देने तक वफादार है, तो मैं तुझे जिंदगी का काश के वो भी पावांगे ना जो खुदा ने रिश्ता साथ मजबूत है। आमीन। कलीसिया रेडी है खुदा से रिश्ता जोड़ने के लिए। नौमी आ गई, नौमी के साथ रूत आ गई। अब रूत की और ये नहीं बहू सास की आपस में गुफ्तगू होती। अब वो कह रही है तू जवान है, तू क्या है, जवान है, मैं तेरे आराम की तालिब ना बनूं। पढ़िएगा, जिससे तेरी भलाई हो, जिससे तेरी भलाई हो। जी पढ़िए। और क्या बोलकर हमारा रिश्तेदार, और क्या बोएस, बोएस को कुछ जानता है? कौन है ये उस वक्त का खेतों का बड़ा मालदार आदमी है, और ये क्या कर वो इसी की बात है। आमीन। चले आगे बढ़ देना पड़ता हूँ, सुनिए। और क्या बोएस हमारा रिश्तेदार नहीं जिसकी छोकरियों के साथ तो थी। आगे मैं पढ़ना नहीं चाहता इसे, जब हम इसको देखते हैं तो लिखा है उसकी तीसरी आयत, सो तुम नहा धोकर खुशबू लगा और अपनी पोशाक पहन और खलिहान को जा, और जब तक वो मर्द खा पी न चुके तो तू अपने कहीं इस पर जाहिर न करना। अब यहाँ पर बहू सास की आपस में गुफ्तगू होती है, और यहीं से मेरा और आपका निजात कहेगा अब आने को है। रूत का रिश्ता बोएस से है, मगर जो रूत और बोएस के रिश्ता से आया उसे देखना चाहते हैं कौन है वो। आइए जरा मत्ती की इंजील पहला बाप निकालिए, जरा और क्लियर हो जाएगा। मत्ती की इंजील पहला बाप और उसकी 5वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूँ। बहुत से सुनिए, मत्ती की इंजील पहला बाप उसकी 5वीं आयत, तो आखिरी हमारा होगा। लेकिन सलमून से बोएस, राहब से पैदा हुआ, और बोएस से उबेद, रूत से पैदा हुआ, और उबेद से यसी पैदा हुआ, और यसी से आमीन। आज हम यीशु मसीह को जब मत्ती के इंजील में, लूका की इंजील, मरकस की इंजील, यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं तो कई एक जगहों पर यीशु मसीह को मुखातिब किया गया। ऐ इब्ने, आइयो क्या लिखा है? ऐ इब्ने, यहाँ पर लिखा है कि एक कलाम का हवाला है कि जब यीशु के कंधे के पास गए तो अंधे ने शोर सुना, लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ बताना ना चाहा। आखिरकार एक शख्स ने बताया, अंधा आदमी उसे क्या पता। उसने रोक कर पूछा, भाई कौन है? भाई ने बता दिया, यीशु मसीह नासरी आता है। और चिल्लाया, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर क्या कर, रहम कर। अंधा जान चुका कि अगर मैं खुदा से रिश्ते को कायम करूंगा तो एक ही रिश्ता है जो दुनिया में मुझे तमाम फिक्रों से, तमाम दुखों से रिहाई बख्शता है। अब उबेद से यसी पैदा हुआ, यसी से दाऊद पैदा हुआ, और आगे देखें तो पता चलता है इसी रिश्ते से आज की कलीसिया जिससे रिश्ता आया उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है कलीसिया? जोर से कहिए, उसका नाम क्या है? यीशु। यीशु से रिश्ता कायम करना चाहते हैं? इस बात की परवाह न करें कि हमारा रिश्ता किस कदर पीछे रह चुका है, हम किस कदर पीछे रह चुके हैं। वो आज भी अपनी बाहें फैलाए, खादमों के जरिए, कलाम के जरिए, टीवी चैनल के जरिए, यूट्यूब, फेसबुक पर कई खुदाम इस बात की गवाही देते हैं। सबब क्या है, वजह क्या है कि किसी तरह खुदा की कलीसिया उस रिश्ते के अंदर मुंसलिक हो और सारा जलाल मेरे और आपके जिंदा मसीह को मिले। अब जब यीशु से रिश्ता कायम करना है तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा।
चाहते हैं वो करना, जो चाहते हैं अपना हाथ दिखाना। दुनिया के रिश्ते हम देख चुके हैं, अब उस रिश्ते को देखना है जो उस दुनिया के अंदर आया, ताकि वो मुझसे रिश्ता बनाए, मैं भाई से रिश्ता बनाऊं, भाई आपसे रिश्ता बनाए, आपका रिश्ता दूसरे भाई के साथ हो, इनका रिश्ता यहाँ, और ये रिश्ते परवान चढ़ते 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 खुदा की बादशाहत के लिए तैयारी करें। आमीन आमीन। आसरे का नाम क्या है? मरकज़ की इंजील 16वां बाब और जरा उसकी 15वीं आयत निकालिए, उसके बाद हम कलाम को बंद करते हैं। मेरे साथ निकालिए मरकज़ की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत। देखिए, जो खुदा से रिश्ता रखना चाहते हैं, खुदा का रिश्ता आपसे इस सूरत में मुमकिन हो सकता है। पढ़िए जरा मरकज़ की इंजील 16वें बाब की 15वीं आयत। और उसने उनसे कहा, किसने? स्टेप बाय स्टेप चलिए। और उसने उनसे कहा, किसने? यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से। हालेलुया, कलीसिया हालेलुया। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह अब शागिर्दों से कह रहा है, क्या कहने लगा है? अब रिश्ता परवान चढ़ने लगा है जी। कलीसिया, so to be alert and receive the blessing। तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजीर की ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है, सारे रिश्ते छोड़ जाते हैं, हर रिश्ता धोखा दे जाता है, हर रिश्ता पीछे हट जाता है। हमने काले खुदा में से पढ़ा, लेकिन यीशु मसीह जो अबदी बादशाह है और जो फिर आने वाला है, क्या ही समा होगा कि जब यीशु मसीह अपनी बादशाहत में आए और उसके बेटे बेटियां पहले से तैयार हैं। आमीन। क्या कह रहा? उसने हमसे कहा, तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने किसकी मनाती करो? कलीसिया, किसकी मनाती करो? अंजीर की मनाती करो। पढ़िए भाई आगे। जो ईमान लाए और अब अगली बात शुरू होने लगी है। अब रिश्ते की पहली सीढ़ी, खुदा से रिश्ता कायम करना है। सुन लीजिए, जो क्या लिखा है? ईमान लाए, कलीसिया क्या लिखा है? मेरे साथ कहिए, क्या लिखा है? जो ईमान लाए और क्या ले? वो निजात पाएगा। जो ईमान लाए फिर बपतिस्मा ले, वो हालेलुया। ये है हकीकी रिश्ता, जो ना छोड़ेगा, ना धोखा देगा, ना दगा देगा। आप रिश्तों से तंग आ चुके हैं, आप धोखे खा के तंग आ चुके हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, तमाम सुनने वालों पर, देखने वालों को इस बात को बाहर कराना चाहता हूँ कि अगर आप तमाम रिश्तों से धोखा खा चुके हैं, तो आज खुदा आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। और वो क्या है? जो ईमान लाए और बपतिस्मा, वो क्या होगा? निजात पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो ईमान लाए बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। ये तो उनके लिए जो ईमान ला रहे हैं, बपतिस्मा ले। आप अगला स्टेप सुन लीजिए। और जो ईमान ना लाए, वो क्या होगा? सब कहिए, क्या होगा? जो ईमान ले आया, बपतिस्मा ले लिया, आपने ईमान को हासिल करना है, आपने बपतिस्मा लेना है। और अगली बात सुन लीजिए, रोल कुदस इनाम में मिले। हालेलुया। ये है हकीकी रिश्ता। आपने एक स्टेप पूरा करना है, खुदा ने पूरी मधुमुखियां आपके लिए खोल दी है कि मेरा बेटा ईमान ले आया है, मेरा बेटा इस बात के ऊपर कायल हो चुका है, अब ये दुनिया के रिश्ते का नहीं, बल्कि मुझे बाप की उस दांडी में रास्ता हकदार है, जिसका वादा उसने मेरे साथ किया है। बाइबल मुकद्दस की तालीम है। तौबा, बपतिस्मा, रूह कुदस नाम में पाना। और उसके बाद खुशखबरी। क्या है खुशखबरी जी? कोई बताएगा मुझे? कोई रहनुमाई करे। बाइबल की खुशखबरी क्या है? यीशु मसीह का मरना, दफन होना और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठना। अब कोई मजहब है, कोई अकीदा है, कोई फिरका है, वो अमीर है, वो गरीब है, वो गोरा है, वो काला है, वो पढ़ा लिखा है, वो अनपढ़ है, उसके ऊपर ये फर्ज है कि वो
خدا کے کفارے کی تصویر کرتا ہے تو خدا کی برکت اس کے لیے جاری رہتی ہے. آمین آمین. آپ کسی فرقے سے ہوں, آپ کسی قبیلے سے ہوں, یاد رکھیے خدا آج آپ کو یہ وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے, اگر میرے رشتے کے اندر آنا ہے تو یہ پہلا جز ہے. آپ ایمان لیں, توبہ کریں, آپ پر اپنے مہربانی شروع کر دیں. ہم دنیا کے رشتوں کی جستجو میں نہ رہیں, ہم بھائی کے آسرے پر نہ رہیں, ہم بہن کے آسرے پر نہ رہیں, ہم کسی اور قریبی رشتے کے آسرے پر نہ رہیں. لیکن یاد رکھیے اگر ہم خدا کے رشتے کو سمجھتے ہیں تو خدا کا رشتہ ایسا ہے. آخری آیت کے ساتھ بند کرنے لگا ہوں. خدا کی محبت دیکھنی, خدا کا رشتہ دیکھنا ہے. لکھا ہے خدا نے دنیا سے کہ اس نے اپنا, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ, زور سے کہیے, بلکہ کیا کرے, ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ ہے خدا کا رشتہ. ہمارے رشتے ایک دوسرے کو موت کے حوالے کرتے ہیں, ہمارے رشتے دھوکہ دیتے ہیں, لیکن خدا کا رشتہ ہمیں ابدی زندگی کی طرف حوالے کرتا ہے. خدا اس کلام کی وسیلہ سب کو قبول کرے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں, اپنے سر کو جھکاتے ہیں. خداوند ہماری طرف سے جنگ لڑے گا, خداوند ہماری طرف سے جنگ لڑے گا. یہوہ اس کا نام ہے, یہوہ اس کا نام ہے, وہ صاحب جنگ ہے. خداوند ہماری طرف سے جنگ لڑے گا. خداوند ہماری طرف سے جنگ لڑے گا, وہ جنگ لڑے گا. کچلے ہوا کو کرے گا آزاد اپنی قوت سے, کچلے ہوں کو کرے گا آزاد اپنی قوت سے. توڑے گا جوئے گناہ کے, ابلیس کی ظلمتوں کے, ابلیس کی ظلمتوں کے. پناہ میں وہ اپنی لے کر نیا زور وہ دے گا, پناہ میں وہ اپنی لے کر نیا زور وہ دے گا. وہ جنگ لڑے گا. شیروں کی ماند ہو یا ہو آگ کی جلتی بھٹی, شیروں کی ماند ہو یا ہو آگ کی جلتی بھٹی, پالوس اور سلاس کی قید میں اس نے ہی بیڑیاں توڑی, اس نے ہی بیڑیاں توڑی. خداوند تیری مشکلوں کو
शैतान का सर कुचला है, शैतान का सर कुचला है। अपने लहू से यीशु ने मुझे मोल लिया है, अपने लहू से यीशु ने मुझे मोल लिया है। वो जंग लड़ेगा, खुदावन हमारी तरफ से जंग लड़ेगा। यहोवा उसका नाम है, यहोवा उसका नाम है, वो साहिबे जंग है। खुदावन हमारी तरफ से जंग लड़ेगा। खुदावंद हमारी तरफ से जंग लड़ेगा।